اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ میٹھے میٹھے سائبر مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت تشریف لا چکے۔ اب ہمارا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل اس انداز سے ہوگا اور یہاں سوال جواب کا بھی سلسلہ انشاءاللہ عز و جل رہے گا۔ صلو علی الحبیب۔ یہ مسئلہ کہ بیچ بھی سکتا ہے، کیونکہ میری ملک ہوگی نا، میں جو چاہوں کروں۔ میں جو جانتا ہوں شاید یہ جانتے گا کرم نوازی دینے میں خطرہ نہیں ہے۔ دینے میں خطرہ نہیں۔ ماشاءاللہ یہ تو ہے کہ بڑے ماشاءاللہ خوبصورت پیارے ہیں۔ دعوت اسلامی کے پہلے سال سے ہمارے ساتھ ہے یہ جو انہوں نے لگایا ہے کالا رنگ، یہ نہیں کالا رنگ دوسری جگہ ابھی یہ جو ہے یہ نہیں ہلتا ہے، اس کا کیا؟ ایسی خوبصورتی کے لیے زینت ہے یہ، اس کو فیشن زینت فیشن زینت نہیں، فیشن الگ چیز، زینت الگ چیز ہے۔ اچھا قربانی کے جانوروں کو ہم سجاتے ہیں بس۔ ویسے ہدی جو قربانی کا حج کے جانور ہیں، ان کو تو سجانے کی حدیثوں میں صراحت ہے۔ قربانی کے جانوروں کی کئی صراحت ملی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی ممانت بھی نہیں ملی۔ سجاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں سجاتے ہیں، ہمارے عرف ہے اس کا۔ وہ ہدی ساتھ پہلے جانور لے جاتے تھے قربانی کا یا بھیج دیتے تھے، اس کا ایک پورا مسئلہ ہے۔ تو اس کو یہ کہ بٹ کر ہار اس کے گلے میں ڈالنا اور اس طرح کی مطلب روایتیں ہیں حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب۔ اب قربانی کے جانور کی سجاوٹ کی کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ ہم نے اس کی شروعات میں بھی کوشش کی کہ مل جائے، شروعات میں بھی نہیں ملا کچھ۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت ہے، ہار بنانے کی، ڈالنے کا نہیں ہے، بنانے کی۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار بھیڑیں حاجی صاحب نے مجھے تحفے میں دی ہیں۔ اب پہلے قیمتی تھی، اب انمول ہو گئی کہ ایک پر نیت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس کو قربان کریں گے، وہ میرے پیر و مرشد غوث پاک کے نام پر قربان کریں گے۔ اب پہلے قیمتی تھے، اب انمول ہو گئے۔ یعنی اس میں جو بابا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو جو وسوسہ آ سکتا ہے، ہم ذرا اس کی طرف چلتے ہیں بابا، کہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو غالباً یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ قربانی جو اللہ کے نام پر کی جاتی ہے، ساری دنیا میں عاشقان رسول جو قربانیاں کرتے ہیں اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اور آپ اتنے خوبصورت اور پیارے جانور آپ کو جو تحفتاً ملے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک میں غوث پاک کے نام پر قربان کروں گا اور ایک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کروں گا۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کو وسوسے آئیں، ان کے متعلق آپ کچھ اس کا حل عطا فرمائے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ مطلب اللہ کے نام پر قربان کرنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر قربان کروں گا اور ایک میں غوث پاک کے نام پر قربان کروں گا۔ یہ تو عام طور پہ جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ سبھی عام طور پہ کیا حقیقت میں سب اللہ کے نام پر ہی ذبح کی جاتی ہیں، لیکن قربانی جن پر واجب ہے ان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، جن پر واجب نہیں وہ بھی اپنی طرف سے کرتا ہے۔ اور ویسے اگر جانور پر کسی کی نیت نہیں کی اور ذبح کر دیا تو یہ تو کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو حدیثوں میں اس کی صراحت ہے نا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نام پر اور اپنی پیاری امت کے نام پر ذبح کرنا ثابت حدیثوں سے، تو کیا غوث پاک امت میں نہیں ہے؟ غوث پاک کے نام کی کر دی تو کوئی وسوسہ آ گیا؟ تو ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی ہوتی ہے۔ دراصل غوث پاک کا نام آتا ہے تو بعد ہوگا شیطان کو لگتا ہے کرنٹ، تو جس میں یہ نرم گوشہ پاتا ہے اپنی طرف اس کو ڈالتا ہے وسوسہ۔ اس کی ایک حکایت بڑی پیاری ہے، بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے 40-45 سال پرانی بات ہے، کہ ایک اس وقت کا میرا دوست تھا، اس نے بتایا کہ میں ایک بڑا جانور 11ویں شریف کی نیاز کے لیے لایا تھا، تو ایک صاحب مل گئے اور اس نے کہا کہ یہ کس کا ہے؟ تو بولا یہ غوث پاک کا ہے۔ غوث پاک کا؟ یہ تو حرام ہو گیا، یوں ہو گیا، اس نے کہا۔ اب وہ بیچارہ اس کو کچھ سوچا پڑا نہیں ہوا یا بحث کی ہوگی اس نے۔ پھر اتفاق سے بقرعید
के वक्त वही साहब अपना जानवर लिए आ रहे थे, तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये किसका है, क्यों, मेरा है। तो बोला गोश्त पाक का नाम पड़ा तो हराम हो गया, तेरा नाम पड़ा तो हराम क्यों नहीं हुआ। इस पर वो अगला जो था लाजवाब हो गया। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी एक कुर्बानी अपनी तरफ से करते थे और एक कुर्बानी नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सल्लल्लाहु किया तआला करते अलैहि थे। वसल्लम कैसे बिल्कुल क्या करते थे। जी जी, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि और वसल्लम। ये कुरान की इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं, कहते हैं कि कुरान में है कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जिस पर अल्लाह के गैर का नाम ले लिया गया वो भी हराम हो जाता है। तो इस हवाले से कुछ वजाहत हो जाए अगर, कि इस आयत का सही माना क्या है। ये तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं ना कि ज़बह के वक्त एक तो है कि अल्लाह के नाम के बगैर ज़बह किया, एक तो सूरत ही है, लेकिन इसमें बहरहाल उलमा के बहुत कलाम है। असल में जो बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान किया जाता था ना, ये इससे मुराद है। यानी ये था बवक्ते ज़बह वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इस पर इजमा लिखा है मुफस्सिरीन ने कि इससे ये है कि ज़बा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया, जी। ये नहीं कि ज़बा से पहले अगर किसी का नाम कर दिया, मंसूब कर दिया। ये तो इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की खुद हदीस मुबारक है कि वो ऐलान करवाते थे कि ऐलान कर दो कि ये इब्ने उमर का जानवर है। तो मंसूब करना तो ये खुद असलाफ से साबित है इस बात का। और ये आयत करीमा ख़ास बवक्ते ज़बा गैरुल्लाह का नाम लिया गया तो उसके हुर्मत के लिए, उसके हराम होने के लिए नाजिल हुई थी। जी, हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन मदीने में कौन सी मस्जिद है, मस्जिद नबवी है ना, माशाअल्लाह। नबी के नाम पर है ना। तो इसलिए वो ये वहम है, वसवस है, नाजरीन में से किसी को हो तो उम्मीद है कि जो सईद हजरात हैं सादतमंद, उनके तो वसवसे कट गए और इंशाअल्लाह शैतान अपने सर पे खाक डाल रहा होगा कि ये कहाँ बकरे लेकर आ गए, मेरे दोस्तों को अट्रैक्ट करके इन लोगों ने चैनल पे बिठा दिया। मिलके साथ नारा लगाए, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और वैसे भी पीन जो है ना वो उसी दीवार में दाखिल होती है जो नरम हो, सुभान अल्लाह। है वाह। तो ऐसे सॉलिड हो जाओ कि कोई वसवसे की भी दाखिल ही ना हो सके और शैतान के खिलाफ एलान जंग करते रहा करो। बस जो उलमा अहले सुन्नत हमें फरमाए ना, बस आंखें बंद करके मान लेना है। क्योंकि चुनाचे करेंगे तो शैतान वैसे ही हाथ फैलाकर आ जाओ, दामन फैला के रखा है, अपने पास इल्म होता नहीं है तो वो फिर फांस लेता है। और हम आखिरी उम्र तक बाज़ औक़ात लोग हैं वो उसको सही समझते रहते हैं कि मैं जो समझाऊं सही है। तो अपने आप को उलमा अहले सुन्नत के हवाले कर दें। फैज़ान उलमा अहले सुन्नत जारी रहेगा। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तार सुननी आलिमों से प्यार है, हम कोई तार सुननी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हाँ इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला। ऊँटों के पास भी जाएंगे बाबा, ये अकेला अकेला खड़ा हुआ है। उमूमन मतलब ये जैसे कि अभी तो खैर ये हमारे यहाँ बाबा ये मौजूद है, लेकिन देखा ये गया है कि हमारे यहाँ कुर्बानी के मौके पर ये जानवर नहीं लाया जाता। तो ये जानवर जो यहाँ लाया गया है इसके मुतालिक आप कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन को फरमाएंगे कि यूँ तो जिससे वो हमारे मुँह होता है ये क्या लेकर आए, इसकी को कुर्बानी होती है, ये क्या लेकर आ गए, ये इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती भाई, ये मौलाना लोगों को क्या हो गया, तो इनको जरा जवाब तो क्या हो गया। ये भैंसा है, इसके नाम का कुछ हो सकता है बाबा? यानी ये नर भैंसा है, इसको भैंसा बोलते। और इसकी मादा जो है भैंस, वो तो दूध की टंकी है, दुनिया जानती है उसको, बहुत दूध देती है। ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया में ज्यादातर दूध भैंस ही का चलता है, पिया जाता है। तो ये भैंसा है, इसको अगर ये जवान हो ना तो हमारे यहाँ कट्टा बोलते हैं। अब ये पता नहीं इसके दांत कितने हैं, 2 दांत है, गालिबन 2 दांत से छोटे वो कट्टा बोलते हैं। पाडो मेमणी में ना, पाडो उनके चूंदा वधारेतर सावित्रों को पाडियो चूंदा, अपनी मेमन जो गोश्त फरोश होते हैं ना उनमें सुना था। तो ये
भैंसे को पाडा बोलते हैं, ये गुजराती में, मेमणी में। और अब तक तो ये था बाबा, आपको मेंढा तोहफे में आ रहा था, तो दुम्बा तोहफे में आ रहा था, तो ऊंट तोहफे में आए, अब इस साल बाबा आपको भैंसा भी तोहफे में आ गया। सुभान अल्लाह। लोग इसकी कुर्बानी नहीं करते आमतौर पे, हालांकि ये कुर्बानी का जानवर है और इस वजह से ये सस्ता मिलता होगा। ऐसे कुर्बानी आमतौर पे चूंकि इसको आवाम लेती नहीं है, तो इस हवाले से तो ये मार्केट में, लेकिन बाजार जिसको लेना होता है शौकिया वो दाम देते ही हैं, और ये भी मतलब अच्छे अच्छे दामों में ही बिकते हैं। 2-2, 2.5 लाख रुपए के होते हैं भैंसे, तो वजनी जो होते हैं। आवाम ज़्यादातर लेती नहीं है, लेकिन जिनको शौकिया लेने होते हैं तो ये नॉर्मली बेचते भी नहीं है अपने पास। जी जी, नहीं तो ये असल रखते भी कम ही है जी, कम रखते ज्यादातर। इसको 2, 4, 5 दिन का होता है ना, जी बाबा, तो ये फारिग कर देते कि इसको खिलाएं क्या, जी इतना खिलाएं और ये दूध तो देगा नहीं, जी जी, जल्दी जल्दी हम जी नुकसान बेच देते हैं गोश्त फरोशों के हाथ। भैंस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं जी है। बाबा। तो अगर हमारे नाजरीन इसको भी कुर्बानी में अगर इस्तेमाल करें, अल्लाह की राह में कुर्बान करना, तो अच्छी बात है, जायज़ है। और बस ये एक इत्तेफाक है कि लोगों को यूँ लगता है कि यार भैंस का गोश्त, इनको बेचारों को पता ही क्या है कि जो चटपटी नहारी खाते हैं वो किस चीज़ की होती है। आम तौर पे ये भैंस या बहुत ही बूढ़ा बैल होता होगा या ऊंट। और ये जो गोश्त फरोश जो है ना, ये भी कट्टे का गोश्त बेचते हैं। एक तादाद है कि जो गोश्त आप लेते हैं, बड़ा गोश्त, ये बहुत सारा गोश्त कट्टे का होता है इसमें, और ये बोलते नहीं है, बल्कि इसकी वो मखसूस जगह की खाल हटाकर उसमें दूसरी कोई छोटे छोटे थन वाली वो खाल का टुकड़ा रख देते हैं इस पर, ताकि इस पर लोग धोखा खा जाए। ये भी होता है हमारे यहाँ। कहते हैं बाबा बाबुल इस्लाम में इसकी कुर्बानी लोग कसरत के साथ करते हैं। इसका गोश्त बुरा नहीं होता, अलबत्ता ये कि इसकी देखने में ये बहुत रौबदार होता है। भैंस जो देखने में बहुत रौबदार होती है, यानी यहां तक कि इसको देखकर शेर भी खौफजदा हो जाता है। मगर ये सबसे बुज़दिल जानवर है। हयातुल हयावान में लिखा है कि ये सबसे बुज़दिल जानवर है। यहां तक कि मच्छर भी अगर इसको काट ले ना, तो ये घबरा जाता है और पानी में घुसने की कोशिश करता है। हाँ, इसका नाम जो है ना, ये जामूस है, जो कि फारसी में, लेकिन अरबी में अब ये काफी मुस्तमल है। हम इसको भैंस कहते हैं और ये नर को भैंसा कहते हैं। अपने मालिक के इशारे भैंस खूब समझती है। जब इसका मालिक इसे पुकारता है तो ये उसकी आवाज सुनकर फौरन उसके पास पहुंच जाती है। ये इसके शरीफुल नस्ल होने की दलील है। भैंस अपनी जगह से बहुत ज्यादा मानूस हो जाती है। जहां इसको रखा जाए तो वो जगह बस उसकी उनसियत हो जाती है, जैसे हम लोगों को अपने मकानात से। ये अपनी और अपने बच्चों की खातिर पूरी पूरी रात नहीं सोती। जब भैंसा दूसरे भैंसे से जोर आजमाई करते हुए शिकस्त खा जाए तो वो शर्म के मारे दरख्तों के झुंड में दाखिल हो जाता है और वहां पर क़याम करता है, यहां तक कि उसे मालूम हो जाए कि वो खुद ताकतवर है। क्योंकि इनके हफ्जे तो कमजोर होते हैं ना, तो ये फिर इसको लगे कि मैं तो ताकतवर हूं, तो फिर निकलकर नई ताकत और कुव्वत के साथ मैदान में उतरता है और अपने हरीफ पर हमलावर हो जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता यहां तक कि उस पर गालिब आ जाए। लेकिन ये जो लोग लड़ाते हैं ना, भैंसों को लड़ाते हैं, भैंसा होता है, भैंसों को दुम्बे लड़ाते हैं, लड़ाने के दुम्बे आते हैं बाकायदा, तो ये इनको लड़वाना नाजायज है। मुर्गे लड़ाते हैं, ये भी नाजायज और गुनाह है। और इनका लड़ने का तमाशा देखना, ये भी नाजायज और गुनाह है। भैंस का गोश्त हलाल है। भैंस की खाल की धुरी देने से घर के तमाम पिस्सू हलाक हो जाते हैं। पिस्सू ये बहुत बारीक कीड़ा होता है
परों वाला, तो सख्त होता है, इसको दबाओ तो ये आसानी से मरता नहीं है। और उमूमन इसकी ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है। तो काटता है, खारिश होती है काटता है तो अगर किसी घर में हो तो उसकी खाल का टुकड़ा जलाएंगे तो वो मर जाते हैं। अगर भैंस की चर्बी, ये बहुत एक फायदे वाला नुस्खा है, अगर भैंस की चर्बी को इंदरानी नमक के साथ मिलाकर खारिश, जिसको खारिश की बीमारी हो, तो खारिश ज़दा, खारिश के मरीज के बदन पर या किसी के चेहरे पर दाग हो तो दागदार चेहरे पर मल दिया जाए तो खारिश और दाग इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। और अगर बरस, यानी जिसको कोढ़ हो गया हो, सफेद दाग वाले को मल दिया जाए तो इंशाअल्लाह उसको सफेद दागों से बहुत जल्द निजात मिल जाएगी। तो ये इसकी चर्बी जो है ना, ये ऐसे मरीजों के लिए फायदा देती है। हम इंशाअल्लाह इसको ज़बह करेंगे, अगर हम तक ऐसा मरीज पहुंच गया तो उसको चर्बी हमारे पास हुई तो पेश करेंगे। एक कौल के मुताबिक अगर भैंस के दिमाग में जो कीड़ा होता है, ये हमारे भी होते हैं, इंसानों के भी, सबके दिमागों में होते हैं कीड़े, तो भैंस के दिमाग का कीड़ा जो है अपने पास रख ले तो उसे कभी नींद नहीं आएगी। अगर भैंस को कोई ख्वाब में देख ले तो उसकी ताबीर, भैंस का ख्वाब में देखना ऐसे ताकतवर आदमी की अलामत है जो अपनी ताकत से ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता है। और अगर किसी औरत ने ख्वाब में देखा कि उसके खुद उसको भैंस के सींग लगे हुए हैं, तो इसकी ताबीर यह होगी कि वो औरत किसी बादशाह से शादी करेगी। ये मुख्तसर सी मालूमात हयातुल हैवान और अपनी कुछ और मालूमात मिलाकर आपकी खिदमत में मैंने पेश की। काश दस्ते आका से नहर हो गया होता। बाबा ये ऊंट की तरह भी चल ही रहे, ये भी आए हुए बाबा कुर्बान होने के लिए। ये मेरी नवासी का बकरा, ये इंशाअल्लाह गौस पाक के नाम पर ज़बह किया जाएगा। आसिया भाई का बकरा ही हमारे। ये हाथ फेरना बाबा। हदीस शरीफ में कि बकरी का इकराम करो, ये जन्नती जानवर है, इसकी गर्द झाड़ो। तो ये इकराम माने एहतराम, इज्जत, बकरी की इज्जत करो, ये गर्द झाड़ो, मिट्टी झाड़ो, इसकी जन्नती जानवर है। तो इस नीयत से अगर हाथ फेरेंगे हम, गर्द झाड़ेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह। ये भेड़ माशाअल्लाह किसी ने मुझे पेश किया था और ये मैंने नियत करी थी कि इसको बारगाह रिसालत में नजर करूंगा। ये मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने कहा सरकार की बारगाह में पेश कर दूं। काश मंडी का सबसे कीमती जानवर बारगाह रिसालत में पेश किया जाए। कन्फ्यूज़न है, कभी आप भेड़ फरमा रहे थे, कभी मेंढा, कभी दुम्बा, तो इन तीनों में फ़र्क क्या है, भेड़, दुम्बा और मेंढे में क्या पहचान है इसकी? ये ऊन जिस बकरी या बकरे के बदन पे होता है ना, ऊन यानी रुई रुई की तरह बाल, ये ऊन है। तो जिसके बदन पर, जिसकी खाल में ऊन हो, वो या दुम्बा होता है या भेड़। दुम्बा उसको बोलते हैं कि जिसकी पूंछ में चर्बी की पोटली होती है, इसको चक्की बोलते हैं। और जिसकी दुम में चर्बी की पोटली नहीं होती, जैसे ये तीनों बगैर पोटली के, तो ये भेड़ कहलाते हैं, इसको भेड़ बोलते हैं।
इसको दुम्बा तो वही चक्की वाला। सुभान अल्लाह, देखो इसका आंखें काली, इसकी पांव काले, पेट काला है कि नहीं? पेट काला नहीं है, थोड़ा सा काला हिस्सा है। तो हदीस शरीफ में है ना कि सियाही में देखता हो, सियाही में चलता हो, सियाही में बैठता हो। ऐसी कुर्बानी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तलब फरमाई थी। जानवर देखता हो तो आंखें काली हैं इसकी, पांव काले हैं, सियाही में देखता, काले पांव वाला ने, काले सियाही में चलता हो और सियाही में बैठता हो, पेट काला हो। तो इसका पेट थोड़ा सा काला है, पेट में नहीं है काला, बाजों में होती है। किसके नाम का है पापा ये हजरत बाबा सुर्ख पोश रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर कुर्बान किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये बड़ा वाला ये बारगाह रिसालत में नजर होगा इंशाअल्लाह। क्या पेश करे आका, क्या चीज हमारी है कुर्बान, क्या करे आका, क्या चीज हमारी है, ये मेंढा तुम्हारा है, दुम्बा भी तुम्हारा है, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। सल्लु अलल हबीब। ऊंट से मुतालिक पापा कुछ मालूमात फराम करें। ये पहले ये बताए पापा, ये बहुत सारे जानवर होते हैं लेकिन हमारी एक तादाद है जो ऊंट का नाम सुनती है ना तो जैसे कि वो बेचैन सी हो जाती है, कुछ मजा सा लेना लुगा हो जाता है। दिलचस्पी बहुत है ऊंट के अंदर, हालांकि ये भी जानवर है, चार टांग वाला। इसकी क्या वजह है कि ऊंट का नाम सुनकर मतलब इतनी दिलचस्पी, फिर वो ये ऊंट जो हमारा नहर होता है इसके देखने के लिए जो एक जोशो खरोश होता है, इसके कुछ असबाब हैं, क्या है? दरअसल वो बकरे है ना, ये गली गली ज़बह किए जाते हैं, ऊंट कहीं कहीं। तो यूं जो कम होता है ना, नायाब या कमियाब, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। अगर ये भी गली गली नहर होते हैं तो फिर वही बात होगी, कोई नहीं देखेगा। गली गली बंदे होंगे तो कौन देखेगा? जैसे आपने अभी उसके बारे में भैंस के मुतालिक, ये भी नवीनता, आमतौर पे लोग कम ही इसको आम गलियों में देखते नहीं हम तो। कोई इसकी मालूमात बड़ी प्यारी दी आप। हाँ, भैंस के बारे में मैंने हयातुल हयावान से अर्ज किया, जो जानवरों की जी जी कैफियत जिसमें बयान की गई हैं। हज़रत अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये किताबें लिखी हैं और सरकार आला हज़रत ने अल्लामा दमीरी को आरिफ बिल्ला लिखा है। अच्छा, बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, हैवानों पर बहुत ज़्यादा मालूमात इन्होंने फराम की है। मशहूर तरीन किताब है हयातुल हयावान, दो जिल्दें, हयातुल हयावानिल कुबरा, अरबी की किताब है। ऊंट के मुतालिक कुछ मालूमात। ऊंट के 12 मदनी फूल। कुरान करीम में सूरतुल गाशिया आयत 17 में इरशाद होता है, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत, तर्जमा कंजुल ईमान, तो क्या ऊंट को नहीं देखते कैसा बनाया गया? खज़ानुल इरफान। इस सूरत में जन्नत की नेमतों का जिक्र सुनकर कुफ्फार ने ताज्जुब किया और झुटलाया, तो अल्लाह ताला इन्हें अपने अजाइब में नजर करने की हिदायत फरमाई ताकि वो समझे कि जिस कादिर हकीम ने दुनिया में ऐसी अजीब व गरीब चीजें पैदा की हैं, उसकी कुदरत से जन्नती नेमतों का पैदा फरमाना किस तरह काबिल ताज्जुब और लायक इनकार हो सकता है। अब मजीद मदनी फूल ये खजानुल इरफान से नहीं है, अलग से। एक रिवायत में ऊंट घर वालों के लिए बाइस से इज्जत है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने ऊंट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ उठ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। नंबर 3, पानी की बहुत सी किश्तियां हैं, अल्लाह ताला ने ये खुश्की की किश्ती बनाई है। नंबर 4, ये कांटे खा लेता है। 5,
ये 10 दिन बगैर पिए सब्र कर सकता है। और इसमें गैर मुस्लिमीन के लिए ये निशानी है कि दोज़ख में भूख के साथ भी अल्लाह ताला जिंदा रखने पर कादिर है। नंबर 6, ऊंट भागता तो है मगर हाँपता कांपता नहीं है और उसे पसीना भी बहुत कम आता है। नंबर 7, ऊंट का मुंह कवी हैकल होता है, अपनी मजबूत और रबड़ की तरह के होंठों से ऐसे कांटे भी खा डालता है जो चमड़े में भी सुराख कर दे। 8, ऊंट चूंकि रेतीले इलाके में होते हैं, अल्लाह ताला ने उसकी आंखों और कानों को बालों से ढका है जिससे सूरज की तपिश और तेज रोशनी से उसकी आंखों की हिफाजत होती है। नंबर 9, लोगों को ये गलत फहमी है कि ऊंट अपनी ग़िज़ा कोहान में ज़ख़ीरा करता है। दरअसल कोहान में चिकनाई यानी चर्बी होती है और ग़िज़ा की कमी में ये उस चिकनाई को इस्तेमाल करता है। 10, ऊंटनी का दूध दीगर बड़े जानवरों से ज्यादा ग़िज़ाइयत वाला होता है। 11, ऊंट का गोश्त जिगर के वरम यानी सूजन में भी फायदेमंद है। 12, ख्वाब में ऊंट देखने की ताबीर बुरे अमाल से की जाती है। भाई ये कोहान का आपने फरमाया तो बहुत सारे नाज़रीन इसका कोहान पाँव में ढूंढते होंगे, कोई मुंह पे ढूंढता होगा। इसका सब कोहान है कहाँ? ये कोहान जो है ना, ये कब्र की याद दिलाता है, बल्कि इसकी पूरी कमर कब्र की तरह। सुन्नत ये कब्र ऊंट के कोहान की तरह हो, यूं इस तरह। तो ये ऊंचा है जो कोहान यानी कि यूं तो ये कमर है जो कब्र की तरह पूरी वो कमान की तरह जा रही है। कब्र ऐसी होती है, इतना पीस ले लें तो कब्र लगेगी। अब चौखूटी कब्रें बनती हैं, हालांकि ये मुनासिब नहीं है, कब्रें इसी तरह बननी चाहिए। तो ये ऊपर जो बालों का गुच्छा नजर आ रहा है ना, ये उठा हुआ हिस्सा जो होता है ये कोहान कहलाता है। इसमें गोश्त होता है, बोटी होती है और चर्बी बहुत होती है। चर्बी की जाल बिछी हुई होती है अंदर में। तो ग़िज़ा की कमी की सूरत में ये इसमें से चर्बी से ग़िज़ा की कमी ये पूरी होती है इसकी। इसे ज़बाह नहीं किया जाता, नहर कहते हैं, इसके क्या? इसकी हिकमत ये कि नहर करना सुन्नत है, ज़बाह करना मकरूह है। अब जो लोग इसको 3 जगह ज़बाह करते हैं ये गलती पर है कि इससे बिला वजह जानवर को ईज़ा होती है। एक जगह भी अगर ज़बाह करेंगे तो खून तो निकल जाएगा, 3 जगह ज़बाह करना क्या माना? और नहर जब कर लेते हैं तब भी खून निकल जाता है। तो जब नहर कर लिया तो अब ज़बाह की आदत ही नहीं है। 3 का एक जगह भी अब छुरी नहीं चलानी, नहर करके हट जाओ, खून खुद ही डाल देगा, फिर ये गिर जाएगा। बहुत ज्यादा खून डालकर बहुत जल्दी ये नीचे आ जाता है। जल्दी देखा है हमने। लेकिन ये बस इल्म की कमी की वजह से बाज लोग, बल्कि अक्सर लोग को 3 जगह फिर बेचारे की लंबी गर्दन पर खाबागा काटते हैं। ये नहीं बिला वजह की ईज़ा है। देखने का मंजर होता है कि इतना कद आवर जानवर कितनी जल्दी नीचे आता है। ये बैठने ये इसका हो गया अंदाज। ये बहुत गैरतमंद जानवर होता है। अच्छा। और हाँ, अजीब व गरीब जानवर है ये, इसके तो बहुत खसाइस है। जी हाँ, पहले ऊंटों पर सफर मदीना होता था। सुभान अल्लाह, वाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मशहूर ऊंटनी जिसका नाम कस्वा था, ऐसी आशिक रसूल थी कि जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, ने वफात शरीफ दरपेश हुई, तो ये कस्वा ऊंटनी बहुत गमगीन हो गई।
ऐसी गमगीन हो गई कि इसने चरना ही छोड़ दिया। हाँ हाँ खाना पीना सब तर्क कर दिया, यहां तक के भूखी प्यासी उसने जान दे दी, वफात पा गई। तो ये इनमें भी अजीब अजीब बातें। एक किताब में मैंने पढ़ा कि एक ऊंट मक्के मुकर्रमा में कहीं से दौड़ता हुआ दाखिल हुआ, तो दौड़ता 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 ही है, लोग उसके पीछे दौड़े पकड़ने के लिए, कहीं किसी को ईजा ना दे। ये मस्जिद हराम में दाखिल हो गया, किसी के हाथ में नहीं आया, वहां भी कोई नहीं पकड़ सका। फिर ये मस्जिद हराम में जब दाखिल हुआ तो काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द इसने तवाफ करना शुरू कर दिया, 7 फेरे किए, फिर अपने होंठ इसने हजर अस्वद पर रख दिए। फिर ये कुछ दूर आकर काबे शरीफ के सामने खड़ा हो गया। अब लोग भी हट गए थे कि ये कोई अजीबोगरीब ऊंट है। तो ये जब सामने काबे शरीफ खड़ा हुआ, अब इसकी आंखों से दड़ दड़ आंसू गिरने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे, और रोते 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 वो गिरना शुरू हुआ, यहां तक कि गिर गया। और वहीं रोते रोते उसने जान दे दी। अब लोग बड़े मुतासिर हुए कि ये कैसा ऊंट है। फिर लोगों ने इसका बड़ा एहतराम किया और इसको शान और शौकत के साथ सफा और मरवा के बीच में दफन कर दिया। ये सदियों पुराना वाकया है। काश दस्ते आका से नहर हो गया होता। आला हजरत का जो शेर है, इसी दर पर शुतरान नाशाद गिलाए रंजो इना करते हैं, इसमें भी क्या ऊंट का जिक्र है, क्या है, किस तरह? तो कई ऐसे वाकयात हैं जिनमें ऊंटों ने बारगाह रिसालत में फरियाद की है कि हमारा मालिक हमको चारा नहीं देता, हम बूढ़े हो गए तो अभी हमको ज़बा करने की बात करता है, हमने जवानी में इसकी बहुत खिदमत की है, अब हमको ऐसे ही भूखा प्यासा ये भूखा रखता है। इस तरह की फरियादें की हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऊँटों की फरियाद रसी फरमाकर इनके मालिकान को समझाया। कई रिवायतें इसकी हदीसों में। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो खुद फरमाते हैं, उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, सारी मखलूकात की तरफ भेजा गया हूं। जानवरों की फरियाद सुनते थे। अब जो ऊंटों की बोली जानते हो आका, वो हमारे दिलों की बोली क्यों नहीं समझेंगे, है ना? वो वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, आओ आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे से के जहां पे चलते हैं। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें। बारकल्ला मरजए आलम यही सरकार है। बारकल्ला मरजए आलम यही सरकार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊंट नहर फरमाया। जी हाँ,
मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊँट पेश किए गए थे, तो इसमें से 63 ऊँट मेरे प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दस्ते अनवर से नहर फरमाए, और बकिया जो थे वो मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को हुक्म फरमाया कि आप नहर कर दीजिए। तो ये हाँ कैफियत ये थी कि हर ऊँट खुद आगे बढ़ता था कि या रसूल अल्लाह पहले मुझे ये शरफ बख्शें कि मैं आपके दस्ते करम से नहर हो जाऊं। हर एक की आरज़ू है पहले मुझको रब हाँ फरमाए, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको रब हाँ फरमाए। तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईदे कुर्बा में, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईदे कुर्बा में। ऊँट बन गया होता और ईद कुर्बा में, काश दस्ते आका से नहर हो गया होता।